All right, everyone. So we will move ahead. Right. So in the last class, we talked about accelerations, and even we talked about the three equations of motion. We derived them using the graph and using the calculus as well. Yes. So can anyone tell me that from graph, what all things we can utilize? Yeah. If I have any graph, what thing can be used from the graph? Right. Area under the graph as well as slope. So any physical quantity which we want to determine, that can be determined in terms of either using slope or area from the graph. Okay. So we will today do some questions based on the equations of motion, because in the last class we have just discussed, we have just derived the three equations of motion. So yes, let me just write down V equals U plus AT, S equals UT plus half AT square, and then 2as is equal to v squared minus u squared. There was also one fourth equation that was not that important, but yes, sometimes we may even use this, u plus v by 2 times t. तो ये चार इक्वेशन को हम यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल मूव अहेड टू द अदर सेक्शन. सो बिफोर मूविंग अहेड, किसी को कोई डाउट है इस इक्वेशंस ऑफ मोशन में, इनफैक्ट डेरिवेशन में? आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू डेरिवेशन जो हमने पढ़ा था. एनी डाउट, एनीवन? Okay, no doubt. So let us just have a simple question. So let's say runs at a speed of a boy runs at a speed of 18 kilometers per hour, suddenly stops in 0.02 seconds. So we have to find the retardation. So yes, everyone will do, and quickly you can let me know the result. So here, if you observe, initial speed is given. You can say initial velocity is given. This is the initial velocity. What is the final velocity? It's zero, because it's written boy suddenly stops in this much second. तो अगर वो रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड, है ना? और इनिशियल वेलोसिटी क्या हम 18 लेंगे? नो, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन मीटर पर सेकेंड. So how much will it be in meter per second? 18 times 5 by 18. So that will be 5 meters per second.
Quickly, everyone will find the retardation. (250 meters per second square). Minus 250. Everyone are writing in terms of minus, but to be remembered, ये जो रिटार्डेशन हम मेंशन करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में मेंशन करते हैं, क्योंकि बाय द नेम रिटार्डेशन वी आर ऑलरेडी श्योर कि हम नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एक्सीलरेशन which is going to lead to a stop or halt in the motion. तो अगर आपको -250 मिला है, you have to state in terms of 250 meter per second square only. Let us see. Time here given is 0.02 seconds. So we will just apply simple definition of acceleration v minus u by t. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 minus 5 by 0.02. That will be -250 meter per second square. तो ये एक्सीलरेशन हमारा निकला -250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट जो हम रिटार्डेशन कहेंगे वो कहेंगे हम 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर टू एवरीवन? दिस वी हैव टू कीप इन माइंड. Okay, moving ahead to the next section. Here we will talk about the distance traveled in nth second. जैसे कि लेट अस से वी हैव एन ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट u स्पीड से मूव कर रहा है. सो इन सम टाइम t, प्रोवाइडेड दैट देयर इज सम एक्सीलरेशन, अगर इसमें एक्सीलरेशन भी है तो कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. लेट अस से इट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. सो हाउ कैन वी फिगर आउट व्हाट डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड इन t seconds, right? Distance traveled in t seconds. It is very simple. We will just apply the second equation of motion. क्या होता है ut plus half at square. बिकॉज ये सारी चीजें दी हुई हैं हमारे पास. t दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है. अब अगर हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, so what we will do, we will first find out the distance traveled in n seconds and we will subtract the distance traveled in n minus 1 seconds. So what is this idea, distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 seconds? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, लेट अस से ये ऑब्जेक्ट n सेकेंड्स में यहां तक ट्रेवल किया, तो n माइनस 1 मतलब कि 1 सेकेंड पहले तक वो ऑब्जेक्ट यहां तक ट्रेवल किया होगा, राइट? अब मुझे अगर निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो मुझे क्या करना होगा ये डिस्टेंस निकालने के लिए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, उसमें से माइनस करना होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड्स, राइट? एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस से वी हैव अ सिंपल एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 सेकेंड्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है. लेट अस से 100 मीटर्स. 10 सेकेंड्स में 100 मीटर्स ट्रेवल करता है और 9 सेकेंड्स में वो 90 मीटर्स ट्रेवल करता है. तो अगर मैं पूछूं कि 10th सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल किया, सो नाउ यू कैन फाइंड आउट 100 माइनस 90. बट यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो है 10th सेकेंड वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन उससे 1 सेकेंड कम. तो इसी से हमने फॉर्मूला बनाया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स इज डिस्टेंस in nth second is distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 seconds. Clear to everyone? अब सब एक्सप्रेशन
निकालेंगे और मुझे बताएंगे कि nth सेकंड में डिस्टेंस क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन a है. You have to find distance traveled in nth seconds. Whoever does first, they will let me know. समझ में आया क्वेश्चन क्या करना है? You have to find the expression for distance traveled in nth second by the object. I'll write that. Find distance traveled by the object in nth second if the object is having u as the initial velocity and a as the acceleration. Quickly, everyone will do. Right. I'll scroll past you. U plus a by 2 into 2n minus 1. That's right. Most of you have got. Everyone will try this out. Let us see. So we are now sure कि distance traveled in n second क्या होगा? Distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 seconds. So n second में distance क्या travel करेगा? That means when time is n second,
So u into n plus half into a into n square, right? This is the distance traveled in n seconds. अब माइनस क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड. सो उसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम. बट टाइम क्या देंगे हम यहाँ पर, अब सब्सटीट्यूट करेंगे n माइनस 1 सेकेंड्स. सो u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर. राइट, ये सबको समझ में आया. दिस इज वेरी सिंपल. बस मैंने क्या किया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूले में एक बार टी के जगह n सब्सटीट्यूट किया और दूसरे बार टी के जगह n माइनस 1 सब्सटीट्यूट किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. So let us simplify this. We get un plus half an square minus, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, un plus u और minus half. Let us even simplify this. We will get an square plus a minus 2an. तो un और un कट गया और ये हाफ an स्क्वायर और ये हाफ an स्क्वायर कट गया. बचा क्या हमारे पास, u माइनस a बाई टू प्लस 1/2 इंटू 2an. राइट, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे हमें ये मिलेगा फाइनली. एंड फ्रॉम हियर लेट्स टेक a बाई टू कॉमन. अच्छा, ये 2 और 2 कट गया तो बचा u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू. तो अब यहां से a बाई टू कॉमन ले लेते हैं. सो u प्लस ए बाई टू इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1. सो इसकी प्रूफ इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इफ यू हैव अंडरस्टूड द प्रूफ दैट इज वेरी गुड. बट बिना प्रूफ के भी हम ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चंस कर सकते हैं. राइट, दिस इज क्लियर टू एवरीवन. So let us see a sample problem based on the usage of this formula. Everyone noted this derivation? जो नोट नहीं किए they can let me know. I'll just scroll it up. So you have to find the distance traveled by an object in, let us say, 10th second. If the initial velocity of the object is 10 meter per second and acceleration is, let us say, 5 meters per second square. कोई डाउट है किसी को? $57.5 meters everyone are getting.
So yes, we will directly use this formula that we derived just now. U plus a by 2 into 2n minus 1. अब यहाँ पर 10th second की बात हो रही है, so 2 into 10 minus 1. So this will be 19. So this will be 95 by 2. So 10 plus 95 by 2, 47.5. Okay, so that will be approximately 57.5 and meters. Right, very simple this one. Okay, we will move ahead. अच्छा, लास्ट क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें कि हमने ग्राफिकल बेस्ड ज्यादातर थ्योरी देखा था. ये सारे थ्योरीज we mainly focused on smaller questions related to the usage of the equations of motion. So we will today see some differentiation based questions that are very important अगर हम velocity के types की बात करें. So we know we have two types of velocity. एक तो average velocity हो गया और दूसरा instantaneous velocity हो गया. Can anyone tell me, can anyone recapitulate what is the difference between average and instantaneous velocity? Average velocity क्या होता है? Change in displacement, change in position कह लो, divided by change in time. Instantaneous कैसे निकलता है? ds by dt. Right? Very simple. Just the thing is that instantaneous की जब हम बात करते हैं तो ये change बहुत छोटा होता है. Okay. So let us say we have here velocity is depending on velocity depends on the position by the relation as under. और वो रिलेशन है v इज इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 3s, है ना. डेफिनेटली वेलोसिटी विल बी इन मीटर पर सेकेंड अगर s मीटर में है तो. सो हियर वी हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट s इज इक्वल टू 2 मीटर्स. ये कैसे करेंगे? कोई आइडियाज? एनीवन हु डज इट, लेट मी नो दिस. 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. कैसे मिला 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर? 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर भी मिल रहा है बहुत को. लेट अस सी. पहली चीज है कि हम यहाँ एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे. बिकॉज वी नो एक तो एक्सीलरेशन सिंपल फॉर्मूला होता है dv बाई dt, है ना. अभी हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो वहां पे एक्सीलरेशन ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस ही होगी. सो बेटर देन यूजिंग a एज डेल्टा v बाई डेल्टा t, हम क्या यूज करेंगे? dv बाई dt. ओके, दिस इज क्लियर. अब हम यहाँ पर v के जगह इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें ये मिलेगा s के टर्म्स में, है ना. ये s के टर्म्स में है एंड द डिनोमिनेटर इज शोइंग दैट इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ t. याद है हमने डिफरेंशिएशन में क्या बात किया था? डिफरेंशिएशन कब लगा सकते हैं? जबकि ये और ये वेरिएबल्स एक ऐसा हो, मतलब कि ये अगर t है तो ये भी t के टर्म्स में हो. मतलब अगर ये 2t स्क्वायर माइनस 3t होता
तो हम यहाँ पर इजीली लगा सकते थे. So here what we will do, we will try to use some idea. A हमारा है dv by dt. अच्छा, अब इसको यूज नहीं कर सकते हैं. हमने क्या किया यहाँ पर, ds by ds मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये तो 1 ही होगा, तो इसको हमने नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया. अब क्या किया, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया. कैसे रीअरेंज किया, dv by ds लिख दिया और यहाँ पर ds by dt लिख दिया, राइट. सो व्हाट इज ds by dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी. सो एक्सीलरेशन का हमें एक नया एक्सप्रेशन मिला, v dv by ds. तो ये कैसे मिला स्टूडेंट्स, you all can note this because sometimes this expression becomes very much helpful. जैसे कि यहां पर हम क्या यूज करेंगे, लेट अस सी. v जो दिया हुआ है that is given in terms of s, so definitely it's very easy to find dv by ds, है ना. अब dv by ds निकालेंगे तो उससे एक्सीलरेशन फाइनली हमें कंप्यूट करना है, सो वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन, है ना. सो a क्या हो जाएगा हमारा, v इंटू dv by ds. अब dv by ds क्या होगा, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, 2s स्क्वायर माइनस 3s, और ये क्या हो जाएगा, 4s माइनस 3, राइट. सो नाउ वी कैन पुट दिस हियर, v क्या है, 2s स्क्वायर माइनस 3s, और dv by ds कितना निकाला हमने, 4s माइनस 3. तो ये मिल गया हमें एक्सप्रेशन एक्सीलरेशन का. बट हमें एक्सीलरेशन कब ढूंढना है, एट s इज इक्वल टू 2 मीटर्स. मतलब अब हम बस यहाँ पर s इज इक्वल टू 2 मीटर्स देंगे, है ना. सो वील गेट a एज 2 इंटू s स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 3 इंटू s दैट इज 2 और 4 इंटू s माइनस 3, सो 4 इंटू 2 माइनस 3. तो एक्सीलरेशन कंप्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 3, so 2 into 5 that is 10 meters per second square. ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस आइडिया. ऑल्दो एक्सीलरेशन dv by dt होता है, बट इसी में से हमने मॉडिफाई करके क्या बना दिया, v into dv by ds. Yes, Snigdho, we use chain rule. You will learn about chain rule later on. ये मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन में होंगे तुम्हारे. विवेक, व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड, लेट मी नो दैट. किस पार्ट को रिपीट करना है, वी एस का स्लोप एक्स होगा क्या, यस यस एग्जैक्टली, वी एस का स्लोप एक्सीलरेशन होगा. मतलब कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का अगर हमने ग्राफ बनाया तो ये देखो dv बाई डी एस, dv मतलब स्मॉल चेंज इन y, ds मतलब स्मॉल चेंज इन अकॉर्डिंग टू x डायरेक्शन, तो इसका ये स्लोप होगा dv बाई ds. ओके, एक बार फिर से देखते हैं. विवेक, क्या है कि एक्सीलरेशन को हमने पोजीशन से निकालना है, तो हमें तो बेसिक फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. बट ध्यान से देखो, तो मैं फिर से क्वेश्चन इधर पेस्ट कर देता हूं. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन. क्या था क्वेश्चन, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन पोजीशन बाय रिलेशन v इज इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 3s, है ना. मतलब कि जो वेलोसिटी दी हुई है दैट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, और कहाँ निकालना है, एट s इज इक्वल टू 2 मीटर्स. सो वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन at s is equal to 2 meters.
तो यहाँ पर हम ये एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, a इज़ इक्वल टू dv बाई dt। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हम v का ये एक्सप्रेशन रखेंगे, सो दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ s, बट डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है कि जो भी हम यहाँ पर रख रहे हैं दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ t। तो ठीक है, अगर यूज़ नहीं कर सकते हैं, वी आर श्योर कि वी कैन डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू s। मतलब इससे अगर d बाय ds निकालना है, तो वो हम निकाल सकते हैं, राइट? So we will convert this acceleration, the expression of in terms of dv by ds। तो एक्सीलरेशन है हमारा dv by dt, है ना? अब dv by ds लाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ds तो लिख नहीं सकता, बट ds by ds जरूर लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो ओवरऑल वन ही होता है। अब इसको एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ds by dt, ये दोनों एक साथ, और बच गया dv by ds। तो फाइनली जो देखिए मिलेगा हमें ds बाई dt क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, और dv बाई ds ये तो कुछ नहीं होता है, इसको ऐसे ही रखेंगे हम। तो ये मिल गया हमें फॉर्मूला, एक्सप्रेशन एक्सीलरेशन का क्या मिला? v इंटू डी वी बाई डी एस। अब यहां से हम dv बाई डी एस निकालेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे और बस हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। सो एक्सिल dv बाई डी एस निकालते हैं, क्या होगा dv बाई डी एस? डी बाई डी एस ऑफ 2s स्क्वायर माइनस 3s, तो ये हो जाएगा 4s माइनस 3। इसको पुट करेंगे dv बाई डी एस की जगह, तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 3s और dv बाई डी एस 4s माइनस 3। क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पर बस s की जगह हम 2 मीटर्स रखेंगे और हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अंडरस्टूड नाउ विवेक, एवरीवन? ओके, लेट अस सपोज एक ग्राफिकल क्वेश्चन है छोटा सा। ये रहा एक graphical question and quickly we can do this। Let us suppose ये v वर्सेस s का स्लोप ग्राफ है, एंड लेट अस से वी जस्ट हैव अ ग्राफ जहां पर कि ये 0.2 मीटर्स है और ये 10 मीटर्स है। 2 मीटर्स पे स्पीड लेट अस सपोज 5 है, 10 मीटर्स पे स्पीड 10 है। सो फाइंड आउट द एक्सीलरेशन at s is equal to 2 meters। How will we do this? What will be the answer? You all can tell me. Exactly the same idea as the previous question। Find acceleration at s is equal to 2 meters।
4.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या यूज करेंगे? एक्सीलरेशन एज v dv बाय ds। तो एक्सीलरेशन कहां निकालना है? एट s इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो s इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर देखें तो यहां पर स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। और dv बाई ds क्या मिलेगा? इस लाइन का स्लोप। तो कैसे स्लोप निकालते हैं? कोई भी 2 पॉइंट होना चाहिए हमारे पास। तो 2 पॉइंट्स हैं। सो द स्लोप विल y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5/8। सो 25/8। राइट, सो दैट विल बी 3 point something, right? So 25.8 meter per second square. Okay, so most of the things we have covered in this chapter. अब क्या करते हैं, एक एक करके we will solve the questions. So we will start with the very basics and we'll go to the more advanced one. Okay, the first question. इसको I will discuss this one because here we just need to tell the scalar quantities in the list. So you all can just tell me what are scalar quantities. Those quantities which have just the magnitude, है ना, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि हम फोर्स लें, ये सारे क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं। फोर्स को अगर हम लें, वी अप्लाई फोर्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि फोर्स को बिना डायरेक्शन के हम लगा सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर नहीं होगा। whatever we haven't gone through, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम है, we will be discussing them in the upcoming chapters, so we will not take them into consideration now. इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं, एंड रेस्ट ऑल वी कैन आइडेंटिफाई। जैसे कि वर्क है, वर्क क्या ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा? देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन associated with the work. So this work will be scalar. If we talk about current, can you all tell me whether this current will be a scalar quantity or a vector quantity? Okay, most of you say it is a scalar quantity. They are correct. अब देखते हैं कि ये वेक्टर क्यों नहीं होगा। So let us suppose एक सिंपल सर्किट में ड्रॉ कर लिया। अब जो हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, मतलब ये डायरेक्शन लेते हैं। सो इफ वी ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दिस पॉइंट, तो यहां पर डायरेक्शन क्या हो रहा है? टू द लेफ्ट। इस किसी पॉइंट पर, यहां पर या यहां पर या किसी दूसरे पॉइंट पर अगर हम गए तो वहां पर देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इधर हो रहा है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ करंट इधर हो रहा है। कोई और पॉइंट ले लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर हो रहा है। मतलब कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ करंट कांस्टेंट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ डायरेक्शन, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है डायरेक्शन का करंट में। सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? वी अर्लियर रिमेंबर्ड कि जो करंट की अगर एक डिस्टेंस है दैट्स जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, अ पाथ जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, उसमें डिस्टेंस, why it is not a vector quantity? Because there is no importance of direction, because at every point the direction is changing. And why there is this displacement is a vector quantity? Because हर point पे direction constant रहते हैं। There is some importance to the direction along displacement, है ना? Talking about linear momentum, we have already discussed linear momentum. What was linear momentum? It was m into v,
What doubt you have, Snigdho? सर अगर हम दो सेल यूज करें हाँ, दो सेल इधर पे, तो एक का डायरेक्शन दूसरे के रेस्पेक्ट में तो नेगेटिव हो जाएगा ना सर? क्या दो सेल अगर यूज करोगे? हाँ सर। किस में, कहाँ पर, कैसे दो सेल यूज मतलब करोगे? इसी इसी सर्किट में सपोज एक सेल मान लेता हूँ कि 1.5 वोल्ट का है और दूसरा 3 वोल्ट का है। तो हाँ। 1.5 वोल्ट के उसको मैं उल्टा लगाया हूँ सर, हम्म। दोनों को उल्टा लगाया हूँ। तो 1.5 वोल्ट के लिए जो 3 वोल्ट का जो डायरेक्शन होगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना सर? तो उस केस में तो डायरेक्शन मैटर होगा। बट हर जगह पर तो डायरेक्शन चेंज होंगे ना। हर जगह पर करंट की डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। किसी एक पॉइंट पे, जैसे कि इस पॉइंट पे हमने ले लिया, इस रीजन में, इस रीजन में डायरेक्शन ऑफ करंट चलो ठीक है, लेफ्ट है। बट हमें क्या करना है, फुल पाथ हमें एनालाइज करना है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और कहीं पर भी अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, है ना। अगर ओके हम सर। ये लेट अस सपोज ये 3 वोल्ट ले लिया और इधर एक दूसरा 1.5 वोल्ट ले लिया, तो ये तो बराबर है 1.5 वोल्ट के ही, है ना। अगर हम इन टर्म्स में बात करें तो ये बराबर है 1.5 वोल्ट की। Coming towards linear momentum, yes, this is the product of mass and velocity. अब हमने ये भी देखा था कि एक वेलोसिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करें या एक वेलोसिटी को स्केलर से डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। यू ऑल कैन रिमेंबर दिस। तो ये रहा, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट मिला वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज नॉट अ स्केलर। एवरेज वेलोसिटी, ये भी क्या है? वेक्टर है। Now talking about reaction as per Newton's third law. Newton's third law we will be discussing in the later unit. What does that say? To every action there is equal and opposite reaction. मतलब अगर पहला तो अगर एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा। जैसे कि ये रहा वॉल, इस वॉल पे मैंने एक फोर्स लगाया, सो वॉल विल आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें रिएक्शन का तो एक फिक्स डायरेक्शन होता है, दैट इज अपोजिट ऑफ एक्शन। Talking about next thing, relative velocity. We are yet to discuss relative velocity, so we will skip this one. So overall, you can see that for scalars, we have 2, 3 examples. You can remember mass, time, work, energy. All these are the examples of scalar quantities. Okay, so we will move ahead. So let us do this question. Everyone will attempt this.
Okay. Done everyone. This a man starts at point A, यहाँ से start कर रहा है, which is at 0 meter. इसको हमने 0 meter reference point लिया है. He moves ahead and reaches point B, 5 meters ahead of A. Then he comes back and reaches point C, which is 5 meters behind A. You can see this is 5 meters behind A. You have to find the position vector of the man given the point of reference is A. इस पॉइंट के रेफरेंस में इसकी पोजीशन वेक्टर निकालना है. तो अगर हमारे पास कोई एक ग्राफ है, लेट अस सपोज, तो हम क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन पॉइंट 0 0. जैसे कि हमें 2 3 पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया 2 यूनिट्स अलोंग एक्स एंड 3 यूनिट्स अलोंग वाई. So in short we can say this is a point, this P is a point with respect to the origin. अब इसी को हम पोजीशन वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? So we can see there is 2 units along x axis, 2 along x and 3 units along y. So x direction, how do we represent the direction x? Either we always add the phrase along x axis or we just add I cap. जैसे कि मैंने 2 I cap अगर लिख दिया, so I should understand I am talking about 2 meters along x axis. 3 along y अगर मुझे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स में, so I will write 3 j cap. Okay, so we will come to it later on. Let us have a little discussion on vectors here. So first thing, talking about vectors, we know these are having magnitude as well as direction, है ना? जैसे कि एक एग्जांपल ले, if I say you to draw a line segment of 4 centimeter, so this line segment of 4 centimeter does not have a fixed direction. You all can draw like this, yeah, like this. But if I tell you to draw a line 4 centimeter along east, and let's say to the right I have given you the east direction. Now here we will see that this लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, मतलब इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर है और इसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी है. द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट. सो नाउ हाउ डू वी टॉक अबाउट डायरेक्शन, दैट वी विल टेक इनटू डिस्कशन. डायरेक्शन का तो एक हम स्पेसिफाई कर दें अलोंग ईस्ट वेस्ट या फिर नॉर्थ साउथ या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, बट दैट डायरेक्शन इज लिमिटेड. अब लिमिटेड क्यों है? अगर ये राइट में गया तभी मैं कह सकता हूं ये ईस्ट में गया. अगर इसके रेस्पेक्ट में 45 डिग्री इस डायरेक्शन में गया तभी मैं कह सकता हूं ये नॉर्थ ईस्ट में गया. बट अगर ये 30 डिग्री एंगल पे इस डायरेक्शन में गया या फिर ये इस डायरेक्शन में गया, so now we cannot figure out, we do not have the name of this direction. So we will remember the two ways to describe the direction. We will talk about this direction describing quite later on. We will just see the basics of vectors first. But those two ways are talking in terms of angles. मतलब अगर मैं किसी तरह ये एंगल निकाल लेता हूं, देन आई कैन से कि अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है एट 30 डिग्री, आई कैन से इट्स डायरेक्शन इज एट एन एंगल 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया. आई कुड हैव आल्सो सेड दैट इट्स डायरेक्शन इज 60 degree with respect to vertical axis. That would have made sense.
Okay, so we saw now how to represent a vector. वेक्टर को डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जस्ट बाय अ लाइन एंड एन एरो शोइंग द डायरेक्शन. सो लेट अस सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स, जैसे कि 1 और 4 ले लेते हैं, और दूसरा पॉइंट लेट्स टेक 7, 9. So how do we draw a vector? Let us say I'm moving from the point 1 4 to the point 7 9. तो यहां पर वेक्टर कैसा होगा? इस डायरेक्शन में होगा. So we will just draw a line joining initial to the final and arrow representing the direction. Okay, let us now talk about some simple types of vectors. अभी हमने क्या पढ़ा? वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन. और कैसा रिप्रेजेंटेशन? graphical representation. So let's make it very clear here. Vectors, first we talked about representation. In that representation we first saw the graphical representation, है ना? Graphical representation हमने पढ़ा. Now we will be seeing mathematical representation, and this is what we actually require more. So graphically हम कैसे represent करते हैं? By a line and an arrow. The length of the line representing कि उस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है. मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे कि कोई एक वेक्टर है, लेट अस से एक्सीलरेशन वेक्टर है, उसको हमें रिप्रेजेंट करते हैं. सो ए एंड द एरो एट द टॉप ऑफ इट, या फिर ए एंड अ बार एट द टॉप ऑफ इट, राइट? तो लेट मी ऑल नो फ्रॉम यू कि ये जो वेक्टर्स हैं, हैव यू ऑल गॉन थ्रू vectors? Then I'll not cover up the basics. I'll just move on to describe other things related to vectors. क्या ये vectors हो गए completely? Okay, completely in terms of, let me ask कि जैसे resolution of vector हुआ है, resultant of vector. Okay, okay, great. So we will just move ahead to describe, to do the questions based on finding the position vector. So moving back to this question, after going through little basics of vectors, अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि we have to find the position vector of the man given the point of reference is A. A के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? क्या ये हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ है कि ये कितना, दिस, हाउ मच डीप दिस पॉइंट इज? देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट. वी ओनली हैव द इंफॉर्मेशन कि ये या तो राइट जा रहा है या तो लेफ्ट जा रहा है. तो ए के रेस्पेक्ट में वेरी सिंपल -5 होगा, है ना? तो पोजीशन वेक्टर हमें देना है. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मैन गिवन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज ए. तो वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? पोजीशन तो हमने निकाल लिया, -5 होगा ए के रेस्पेक्ट में. पोजीशन वेक्टर क्या होगा? -5 I cap. Yes, very simple. It has moved to the left. Direction is to the left. So -5 I cap. Okay. Talking about the types of vectors, we have the following types of vectors. I am writing the basic types. एक तो null vector हो गया. दूसरा, what is null vector? First, all of you tell me. वो वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 0 हुआ. We are all going to require this concept of vectors. That's why I am just checking over them, because we strongly require them to do the questions in motion in 1D. Okay, null vector हो गए. Any other types of vectors what you all have gone through?
Equal vectors, okay. Unit vector, yes, that's right. Unit vector, that is important. Unit vector, that vector which has magnitude 1, जैसे कि I cap, J cap या फिर K cap. Equal vectors, that's just a concept, equality of two vectors. I can say that the two vectors are equal if they have same magnitude and same direction as well. Parallel vector, जिसके की direction same हो. Okay, coplanar vectors, coincident vectors. कोप्लानर वेक्टर्स, सारे वेक्टर्स जो प्लेन में लाई कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो भी वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कोप्लानर हैं. ओके, ऑल राइट, दैट्स ओके. मूविंग अहेड. Okay, so we have simple questions here, so you all can tell me what options are correct here. For number 1, how many coordinates have to be changed at least so that we can say the object is in motion? At least. At least 1, है ना? मोशन होने के लिए देयर हैज टू बी चेंज इन पोजीशन, और पोजीशन चेंज करने के लिए एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट हैज टू चेंज. नंबर 2, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एब्सोल्यूट इन नेचर. इज इट राइट और नॉट? बी, position of an object is absolute in nature. You all disagree. Can anyone tell me like why position is not absolute in nature? Position is always relative in nature, है ना? It's dependent on, yes, it is, it keeps changing. Okay. Number 3, in rectilinear motion, only one coordinate changes over the time. Yes, rectilinear is straight line motion, और straight line motion में बस एक ही coordinate change होते हैं. How many mutually perpendicular axes are required for intersection so that the reference point is found out? Okay. So here I will say that it depends upon the our choice. अगर हम एक प्लेन को चूज करते हैं और उस प्लेन पे अगर रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है तो हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस 2 होगा. बट अगर हम स्पेस की बात करते हैं और यहाँ पर अगर हमें रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है, so I should say that there are minimum 3 perpendicular axes which are needed to find or get the reference point, है ना? So it should be clearly mentioned here कि हम प्लेन की बात कर रहे हैं या फिर स्पेस की बात कर रहे हैं. ओके, सो जनरली हम 2 कह सकते हैं कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम प्लेन को मान सकते हैं.
Okay, so moving ahead with this one by one. So whatever is very simple, we'll not go through that. So you can see the first question is definition based. Explain the following terms used in kinematics: distance or path length. We have already seen distance is the total path length. Displacement is the shortest path length. Yes, but number two, can you all tell, state the conditions under which the magnitude of displacement of a particle equals the path length traveled. क्या ये कभी होगा? Conditions under which magnitude of displacement is equal to the path length traveled. We can say an object moving in a straight line. अगर एक ही straight line में object move कर रहा है तो जो भी distance होगा वो बराबर होगा, क्या मैं कह सकता हूँ displacement के? I cannot say. I should say magnitude of displacement, है ना? Because I can never equate scalar quantity with a vector quantity. अब अगर मैं कह दिया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो यस, इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस. नंबर 3, you all can tell me quickly, find the net displacement. Yes, everyone, that's right. When it travels in the same direction, 500 meters. Let us see. Aeroplane flies 400 meters north. Aeroplane नॉर्थ में जाता है 400 meters. ओके, फिर 300 meters along साउथ, फिर से 300 मीटर साउथ आ जाता है, मतलब कि ये 100 मीटर इनिशियल पॉइंट से गया 300 मीटर्स, एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर्स अपवर्ड्स. यहाँ से 1200 मीटर्स अपवर्ड्स, मतलब लेट अस से कि ये 1200 मीटर्स इट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, राइट? ये 1200 मीटर्स अपवर्ड्स. यू हैव टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट. तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहाँ से यहाँ के बीच में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट, है ना? तो एक तो हो गया हमारा 100 मीटर और दूसरा हो गया 1200 मीटर्स. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर. हाउ डिड यू गेट 500 meters? I think you didn't take into consideration 1200 meters upwards. ये नॉर्थ साउथ ट्रेवल करने के बाद 1200 meters अपवर्ड भी तो जा रहा है. अच्छा, तो मोशन कैसे है? लेट अस सी. एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 meters नॉर्थ. वीडियो से समझते हैं. ये रहा एरोप्लेन 400 meters नॉर्थ जाता है, यहां से यहां आ गया, ठीक है. 300 meters साउथ आ गया, ओके, ये साउथ आ गया बैकवर्ड डायरेक्शन में. एंड इट इज रिटन इन द क्वेश्चन कि 1200 meters ऊपर जाता है, यहां से 1200 meters ऊपर जाता है. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना? मतलब कि 400 meters नॉर्थ, 300 meters साउथ, तो जो गैप बचा वो हुआ 100. एक ट्रायंगल का बेस 100 हो गया, फिर वो ऊपर जाता है 1200 मीटर, मतलब हाइट 1200 हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज होगा. और कौन सा ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा? जिसका कि बेस हमारा 100 मीटर है और हाइट 1200 मीटर्स है. नाउ यू ऑल कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. यस, सो यू ऑल कैन कंप्यूट दिस लेटर ऑन. बस सिंपल पाइथागोरस रूल लगाएंगे, रूट अंडर बेस स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर. ओके, नंबर 4,
particle moves along a circle of radius r. Okay, you can see this is the particle. It is moving along the circle of radius r from A and moves in anti-clockwise direction. Anti-clockwise मतलब ये ऐसे उल्टा, ऐसे मूव कर रहा है. What is the distance and displacement of the particle from A to, ये point missing है, let us say A to C. Quickly you all can tell me the distance and displacement of the particle from A to C. Distance is pi r, right? Distance हो गया, ये total path length pi r. Displacement क्या होगा? Displacement is 2r. ये ध्यान देना है, displacement is not 2r, you have to say magnitude of displacement is 2r. अगर यहाँ पर displacement पूछा है, so it is better, it is complete to say that displacement is 2r along horizontally left direction, या फिर ये भी कह दो -2r I cap, है ना? क्योंकि if you are mentioning displacement, it is our duty to mention the direction as well. Okay, this one you all can definitely mention 4 characteristics of displacement. It's a vector quantity. Let us recapitulate कि ये 4 characteristics हम combine कर सकते हैं कि नहीं. पहला तो displacement has magnitude and direction associated with it, so it's a vector quantity. And then you can say this is the shortest distance joining initial to final point. और क्या होगा? Displacement, fourth point, apart from it has having magnitude, direction, and it's a vector quantity. Yes, displacement can be 0 and even negative, है ना? Displacement can be 0, positive या फिर negative. अब unlike distance, क्योंकि distance क्या हो सकता है? सिर्फ positive, है ना? Okay. Number 6, distinguish clearly between distance and displacement. ये तो अभी हमने discuss किया यहाँ पर. Number 7, quickly you can do. Body moves 6 meters north, 8 meters east, and 10 meters vertically up. What is its resultant displacement from initial position? You all can tell me the answer of this. (10√2). Let's see. 6 meter north गया, 8 meter east गया, and 10 meter यहां से vertically upward गया. तो पहले ये निकाल लेते हैं. ये 10 meters upward गया, तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना? ये डिस्प्लेसमेंट है. तो उसमें से हमारा 10 दिया हुआ है, ये पाथ निकल सकता है. ये कितना होगा? एक साइड ट्रायंगल का 6, एक साइड 8, तो एक साइड 10 हो गया. और ये ऊपर गया, मतलब दिस इज अगेन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो इसमें ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें फिर से पाइथागोरस रूल लगा देंगे, जिसके कि दोनों साइड ऑफ ट्रायंगल 10 और 10 है, तो ये हो गया 10√2. This is clear to everyone? Okay. Yes, everyone. Let us go through it once again. Let's see in the picture कि ये situation क्या है. A body moves, यहाँ से फिर से start करते हैं. 6 meters north, इधर गया 6 meters north. 8 meters east, let us say 8 meters इधर आ गया. तो अभी जो initial displacement होगा वो 10 का होगा, right?
10 का होगा। अब एक ट्रायंगल का बेस 10 है और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। यहां से 10 मीटर्स वर्टिकली अप गया। पहले क्या था? बेस 10 और ऊपर हाइट क्या है? 10। तो अब जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा? 10√2। नाउ इज इट क्लियर? Okay. Number 8. You all can tell me the answer. A person moves 30 meters north, then 20 meters towards east, and finally 30√2 meters in southwest direction. The displacement of the person from the origin will be. Person moves 30 meters north. ये रहा 30 meters north चला गया. And then 20 meters towards east. 20 meters towards east. And finally 30√2 in southwest. इस पॉइंट से साउथ वेस्ट किधर होगा? ये इधर होगा. ये गया 30√2. सो व्हाट इज द डिस्पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन? तो पहले 30√2 कहां तक जाएगा उसको निकालने के लिए लेट अस फाइंड आउट कि ये डिस्टेंस कितना है. तो ये हो गया √900 प्लस 400. सो दैट इज √100 1300. दैट इज 10√13. ओके, दैट मीन्स ये जो हमारा लेंथ है 30√2 जो गिवन है दैट इज बिग एज कंपेयर टू दिस लेंथ, है ना. इट इज बिग एज कंपेयर टू दिस लेंथ. You all can just find out this length and then check. तो मतलब अब ये कह रहा है कि it is going 30√2 in साउथ वेस्ट डायरेक्शन. अब यहां से साउथ वेस्ट कितना होगा? 45 डिग्री इस डायरेक्शन में चले जाएं. अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 45 डिग्री मुझे कैसे पता चला कि ये इस डायरेक्शन में होगा, है ना. कुछ ऐसे जाएगा 45 डिग्री, कैसे पता चला मुझे? व्हाट आई डिड कि अगर एक ट्रायंगल का एंगल 45 डिग्री होता है तो ये और ये बराबर होते हैं. दे आर ऑल इक्वल बिकॉज इफ यू यूज tan 45 वो क्या होता है? परपेंडिकुलर P by base B and tan 45 is 1, so we get P is equal to B. So this is B and this should be the perpendicular. तो ये 20 होगा, राइट. तो ये जो लाइन होगा वो इसी इस पॉइंट से कट करके जाएगा, दैट इज ऑफ कोर्स लेस देन 30 मीटर्स. सो नाउ व्हाट इज गिवन कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस डिस्टेंस मूव्ड इज 30√2. Now we have to find the displacement of the person from the origin. So it is not necessary that the object will be here. Let us figure out that ये हमारा origin है. So what will be the displacement that we need to figure out. So quickly now you can do. You have got the idea. इसका भी 10√2. So you all can just now see if this is 20, this is 20, so this length will be 20√2 और ये टोटल है 30√2. तो मतलब ये जो होगा वो होगा 10√2 और ये है 10, so this will be 10. So we just keep on using Pythagoras rule. So what will be the displacement of the person? 10 meters from the origin.
Is this clear? 10 meters. Yes, yes. Okay. Okay, last question we can do. Number 9. इसको एक बार फिर से देखते हैं. It's written, a person moves 30 meters north. ठीक है, ये 30 meters north गया. And then 20 meters towards east. यहाँ से 20 meters east में गया. And then finally 30 root 2 meters in southwest direction. अब इस पॉइंट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि इसको अगर हम ओरिजिन मानेंगे तो इधर जाएगा, कुछ इधर आएगा या फिर इधर आएगा. बट इसमें अगर ध्यान दें, सो वी कैन सी कि हम हर पॉइंट पे क्या किए हैं, ओरिजिन शिफ्ट किए हैं. बट द क्वेश्चन सेज यू टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन. तो इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, लेट अस सपोज फर्स्ट फिक्सिंग द ओरिजिन. अगर ऐसा रहता कि इस पॉइंट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया है और इस पॉइंट पे हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा. सो लेट अस सी, दिस इज जस्ट अ सिंपल आइडिया आई हैव गिवन. नाउ लेट अस लुक एक्चुअली व्हाट इज गिवन. इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, पहले फिक्स कर लेते हैं नॉर्थ साउथ किधर होगा. आई विल टेक दिस हियर. ठीक है, पहले हमने फिक्स कर लिया कि ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट. तो डेफिनेटली ये होगा साउथ वेस्ट. और एंगल क्या होगा, 45 डिग्री, वो ध्यान में रखेंगे. नाउ इट सेज अ पर्सन मूव्स 30 मीटर्स नॉर्थ. सो पहले हम 30 मीटर्स नॉर्थ चलते हैं. ओके, इट हैज मूव्ड 30 मीटर्स नॉर्थ. नाउ देन 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट. अब इस पॉइंट से ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, राइट में, करेक्ट. सो ईस्ट में चलते हैं, 20 मीटर्स अलोंग ईस्ट. चलो ये 20 मीटर्स थोड़ा छोटा होगा, सो इट मूव्स 20 मीटर्स अलोंग ईस्ट. एंड देन फाइनली दिस मच इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन. अब इस पॉइंट से साउथ वेस्ट किधर होगा, यहां पर अज्यूम कर लो. इस पॉइंट से साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में होगा, राइट. यहाँ पे देख लो साउथ वेस्ट इस ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में किधर होगा, इधर होगा. तो ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला कि ये लाइन यहीं से कट करेगा. ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि ये लाइन इधर जाएगा, बिकॉज दिस एंगल इज नॉट 45 डिग्री और साउथ वेस्ट में जा रहा है, मतलब 45 डिग्री हो रहा है. तो 45 डिग्री के लिए क्या कंडीशन है कि दिस 20 शुड बी इक्वल टू दिस 20. बिकॉज किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्री अगर रहेगा तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होंगे, है ना. तो ये परपेंडिकुलर और बेस को इक्वल कर दिया 20, तो ये कितना बचा 10, राइट. अब ये मूव कितना किया है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, 30 रूट 2, राइट. अब इस 30 रूट 2 में अगर हम इसको एक ट्राइंगल माने तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कितना होगा, 20 रूट 2. जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. ये 20, ये 20, तो ये 20 रूट 2. और टोटल कितना ट्रेवल किया इसने, 30 रूट 2. तो कितना बच गया, 10 रूट 2, राइट. अब हमें निकालना क्या है, इट्स डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो हमने ओरिजिन ये माना था और वहां से डिस्प्लेसमेंट ये होगा. तो 10, 10 रूट 2, 10 रूट 2 हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइट हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो हमारा लेंथ आया, डिस्प्लेसमेंट इट विल बी बेटर टू राइट -10 मीटर्स.
है ना? Now I hope everyone has understood. Going back to the last question, quickly we will do. I thought to go ahead with Kahoot today, but unfortunately हम कर नहीं पाए questions. So no problem, we will go with Kahoot in the next class. But सब समझ में आया? कोई भी डाउट है? They all, कोई भी डाउट हो, you all can ask me any number of times. Okay, this ninth one. A wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is. एक आंसर मिल गया. 2 meters, 2 meters. Everyone, 2 meters. Check it again, everyone. Wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution. आधा revolution. तो आधा revolution में let us suppose ये रहा wheel. तो ये पॉइंट जो A है वो टॉप में आ जाएगा हाफ रेवोल्यूशन के बाद. मतलब कि जो ग्राउंड में जो पॉइंट्स टच होंगे वो होंगे पाई इंटू आर, मतलब पाई इंटू 1 मीटर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज 2 मीटर्स. है ना? हमें डिस्प्लेसमेंट, हमें ये नहीं निकालना है कि कितना डिस्टेंस ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड गया. वी आर आस्क्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट इन कॉन्टैक्ट. ये रहा पॉइंट इन कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील with the ground. So after half revolution, this point A will go to the top. Two meters should be the right one. Pi अगर देखें तो pi हमारा क्या है वो, that is the distance that is traveled along the road. अच्छा, एक और चीज यहाँ पर we have to keep in mind कि ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट यहीं पर रोटेट होके ऊपर रहता, then it would have been very simple to say 2 meters. But according to question, if we clearly focus here, it says magnitude of the displacement of the point of the wheel. तो ये व्हील जो है, ये पॉइंट लेट अस सपोज ए यहाँ पर है, बट रोटेट करने के बाद ऑफ कोर्स ये 2 मीटर्स राइज होगा, बट ये थोड़ा सा लेफ्ट भी तो होगा. दिस पॉइंट विल इवन गो टू द लेफ्ट बिकॉज आफ्टर रोटेटिंग द व्हील विल बी प्रोग्रेस्ड अहेड. तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी दिस वन. So it should be more clearly specified here. But this is the situation कि ये राइज कितना हुआ 2 मीटर्स और ये मूव कितना हुआ लेफ्ट में, वो हुआ पाई मीटर्स. तो अब डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं. एवरीवन इज क्लियर विद दिस कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कौन सा डिस्प्लेसमेंट पूछा गया. दैट इज करेक्ट कि जो पॉइंट्स होगा वो दैट विल राइज अप by 2 meters. Also it will, the wheel or the complete system will be displaced to the left. पूरी जो सिस्टम है वो लेफ्ट में डिस्प्लेस होंगे by pi meters because the wheel is not just rotating, it is also moving. है ना? Because we are talking about, yes, that will be 2 pi. तो अगर हम सिर्फ रोटेशन की बात करें, if we just talk about rotation at this point, तो हाफ रोटेशन में ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो उसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स. अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करें, दैट मीन्स जस्ट मूविंग अलोंग द रोड, तो अलोंग द रोड मूव होगा तो वहां पर
ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट यहां पर आ जाएगा इन हाफ रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन में तो ये पॉइंट फिर से ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। सो इन हाफ रिवॉल्यूशन अलोंग द रोड डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? वी विल हैव टू फाइंड आउट यूजिंग पाइथागोरस रूल। सो 2 meters high and then pi meters to the left, so होगा pi square plus 4, right? So depending on all the different conditions, we have understood how to find out displacements. Okay, everyone is clear with this. So the next thing onwards, from average speed and average velocity, we'll go with the question discussions, and then only after completing all the questions, we'll move towards motion under gravity. So first we have to complete a lot of questions. We have to go through a lot of questions. So let's meet in the next class and then we can move ahead. Yes, Samarth, vector sheet discussion. Next class, when it actually starts, just remind me. We will discuss the vector sheet. Okay, because we are actually quite behind. We have to cover a lot and a lot of questions has to be done yet. But anyways, as the next class starts, just remind me. We will discuss the vector sheet. Okay, all right. Bye, everyone. Thank you. Just keep on revising, everyone.